Good morning, students. Welcome back to the class 12 subject Business Nerdy. As we have completed our revision part 2, today we will see in part 3 the Principles of Management by Henry Fayol in chapter number 2, Principles of Management. So let's begin with the topic Principles of Management. And in today's video, we will see 7 principles, and in the next video, we will continue our next 7 principles of management. So let's begin with the first concept, principles of management. Principles of management has 14 points over here. So let's see one by one. First is divisional of work. Second is authority and responsibility. Third is discipline. Fourth is unity of command. Fifth is unity of direction. Sixth is subordinate of individual interest to general interest. Point 7 is remuneration for employees or of employees. Point number 8 is centralization and decentralization. Ninth is scalar chain. 10 is order. 11 is equity. 12 is stability of personnel. 13 is initiative. 14 is spirit de corps. These 14 principles will be studied in the video. We will see one by one every topic, but in today's video we will see only 7 points, first 7 points, and then in next video we will see next 7 points. If you want to study this concept very thoroughly, you should know the examples correctly. So let's begin with the division of work topic. So what is division of work? In Principles of Management, my first point is division of work. The entire work is divided into small tasks or job, and each task or job is performed by the trained specialist is known as division of work. डिवीजन ऑफ वर्क स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में या स्मॉल स्मॉल टास्क में हम डिवाइड कर देते हैं स्पेशली ट्रेंड पर्सन्स को जो अपना काम खूब ही जानते हैं उन लोगों को हम काम देते हैं टास्क देते हैं और जॉब देते हैं इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द फ्यूल्स प्रिंसिपल the intent of division of work is to produce more and better work from the same efforts. Specialization is the most efficient way to use human efforts. According to Henry Fayol, division of work हम लोग करते हैं इसलिए करते हैं कि सेम टाइप का एफर्ट्स तो वो एम्प्लॉय दे ही रहा है लेकिन एम्प्लॉय जब वो सेम एफर्ट्स टास्क के साथ में करता है तो वो और बेटर एनहेंसमेंट करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिव वे में वो रिजल्ट निकालता है इसलिए हेनरी फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क का पहला पॉइंट रखा हुआ है द वर्क हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग्स द एम्प्लॉयज स्पेशली ट्रेन्ड एम्प्लॉयज in that it has been mentioned clearly that the candidate has to be having certain targets and it has to work very effectively and efficiently to get the work done on time. It is on the basis of principles that one can find separate department for finance, production, marketing, human research, etc. in an organization. Division of work डिपार्टमेंटलाइजेशन से भी हो सकता है जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है प्रोडक्शन का अलग है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अलग है मार्केटिंग का अलग है सेल्स का अलग है हर डिपार्टमेंट अलग होता है हर किसी का टास्क वेरिएंट अलग होता है हर किसी का जॉब अलग होता है लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही रोल प्ले कर रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने रखा है फॉर एग्जाम्पल पीटर इंग्लैंड एज यू नो दैट पीटर इंग्लैंड इज एन इंडियन बेस्ड कंपनी बट it is working outside abroad. Peter England, a famous brand name amongst quality shirts, has divided its works among the various groups. One group is responsible for making colares, others in engaging to stitching buttons, yet another engagement in packaging activities etc. पीटर इंग्लैंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट में से एक है तो अगर आप इसके वर्क कंडीशंस की बात करते हैं तो इन्होंने कोलर्स को कॉलर्स जो होता है हमारे जो कॉलर्स है उसको स्टिच करने वाले अलग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है शर्ट की सिलाई करने वाले अलग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है फिर बटन को स्टिच करने वाले अलग हैं और उसके साथ साथ में फिर पैकिंग डिपार्टमेंट भी अलग है तो इसीलिए पीटर इंग्लैंड ने सबको अपना अपना वर्क दिया हुआ है बट पीटर इंग्लैंड के जो मैनेजर्स हैं
उन्होंने अपने वर्क को हर किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। तो डिपार्टमेंट अलग करने की वजह से डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। कुछ एडवांटेजेस है जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क के लिए रिलेटेड है। पहला एडवांटेज अगर मैं देखता हूँ तो एंश्योर स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क रखते हो तो स्पेशलाइज ट्रेन पर्सन आपके पास होंगे और वो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करेंगे मोर एंड मोर। दूसरा पॉइंट मैंने रखा है, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। आप अगर डिवीजन ऑफ वर्क रखते हो तो एम्प्लॉयज को टास्क भी पता है और टाइम लिमिट भी पता है, तो वो और इफेक्टिवली वर्क करेगा। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इन आउटपुट। जितना ज़्यादा टास्क आपने उनको दिया है और वो टास्क ऑन टाइम अचीव कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन में आउटपुट में रिजल्ट देना शुरू करते हैं। इट रिड्यूस वर्कलोड। यस, अगर डिवीजन ऑफ वर्क आप रखते हो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क रखते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली आपने जब डिवीजन ऑफ वर्क किया तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल। अगर एक इंसान काम कर रहा है तो उसी जगह पे अगर हम लोग एक बंदे को ऐड कर दें तो वो बंदे दो मिलके पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं और दोनों के बीच का जो वर्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पहला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो आप इसको पॉज करके एक बार पूरा देख सकते हो। So we will go carry forward with the next point. Point is authority and responsibility. Point number 2, authorities and responsibilities. अब authorities and responsibilities क्या कहता है? According to the Fjall, authority is the right to give order and obtain obedience, and responsibility is the collateral of authorities. यहाँ पे authorities and responsibilities का मतलब यह है कि यहाँ पे authority के थ्रू आप लोगों को ऑर्डर दे सकते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ये देख सकते हो कि सामने वाला काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ इमेज की तरह आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ एन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी both has to be an equal. If authority is higher and responsibility is lesser, then the manager can dominate others. If less power is less and responsibilities are more, the burden of that particular task is been high. एक चीज़ याद रखना है कि अगर अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो अथॉरिटी जिसके पास है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। वेरे जब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा और अथॉरिटी कम है तो बर्डन वो ज़्यादा क्रिएट कर देता है। इसके कुछ इफेक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो पहले हमने देखना है। बिल्डिंग सेफगार्ड्स अगेंस्ट एब्यूजिंग ऑफ मैनेजरल पावर। अगर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो यहाँ पे मैनेजर पावर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है। पावर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों के बीच में अगर बैलेंस है तो यहाँ पे मैनेजरल पावर जो एब्यूज हो सकती है वो एब्यूज नहीं होगी। यहाँ पे सेफ गार्ड बिल्ड होता है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इज मिनिमाइज। अगर पावर ज़्यादा होगा तो उसका यूज़ भी हम लोग कम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है, अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है मैंने। मिस्टर अब्दुल अजीज हु इज़ वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर has to settle a deal with the buyer. He finds out that if he offers a credit period of 30 days, he is likely to settle the deal, which will bring a net profit of rupees 55 crores income to the company. Suppose the company gives power to Mr. Aziz to offer a credit period for only 20 days. He may not be able to settle the deal. Thus, obviously, be a manager should granted authority to offer a credit period of 30 days, which would be the best interest of the company. अगर आप ये पूरी एग्जाम्पल पढ़ते हो तो इसके अंदर ऐसा कहा है कि अब्दुल अजीज जो है वो एक सेल्स मैनेजर है। वो अपने बायर के साथ में एक डील करना चाहता है जिसमें वो क्रेडिट पीरियड 30 डेज का मांग रहे हैं और 30 डेज के पीरियड को अगर हम देते हैं तो कंपनी को 55 करोड़ का वर्थ नेट हमको प्रॉफिट मिल सकता है।
तो अब्दुल अजीज को कंपनी ने सिर्फ 20 दिन की क्रेडिट फैसिलिटीज दी है। तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर कंपनी अथॉरिटी दे देती है कि वो क्रेडिट पीरियड 30 डेज के लिए कर सकता है तो कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट बन जाएगा और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन तो बिजनेस का एक मेन पार्ट है। मैं जब भी कोई लेक्चर लेता हूँ बिजनेस रिलेटेड तो मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन कंटेन रखते हो तो बिजनेस हमेशा आपको सक्सेस लाइफ की तरफ ले जाती है। सो डिसिप्लिन मीन्स obedience to organizational rule and employees agreement that are necessary for functioning of any organization according to Fowl's principles requires good supervisor at all the level of management, clear and fair agreement, application of penalty judiciaries। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल लॉजिक में कहता हूँ कि यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयज एग्रीमेंट को भी हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा और हर ऑर्गेनाइजेशन को ये 3 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा दिमाग में रख के चलना पड़ता है। पहला पॉइंट है गुड सुपरवाइजर्स। हर लेवल पे सुपरवाइजर होने चाहिए और अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए जिससे बिजनेस के अंदर कभी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो। क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट होनी चाहिए, कोई चीज़ को हाइड नहीं करना है, हर चीज़ को आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है। एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज जुडिशल्स। अगर कुछ इश्यू हो जाता है या आपकी गलती से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी को नुकसान होता है तो उसके रिलेटेड कुछ पेनल्टीज भी होंगी, वो सारी पेनल्टीज के बारे में भी उनको डिस्कस करना चाहिए। जैसे डिसिप्लिन के अंदर एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, एन एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड by the management and the labor union whereas the worker has to agree to work an hour extra without additional wages to take out the companies from losses, and in return the management has promised to increase wages for the workers when the mission is completed. Your discipline would mean that both worker and management will fulfill the commitments within any prejudice towards each other। ये केस जो है या ये प्रॉब्लम जो है इसको मैं अगर इलेबरेट करने की कोशिश करूँ तो ऐसा क्या एक मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ऐसा कहा गया है कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में है। तो नुकसान में होने की वजह से यहाँ पर जो लेबर है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे लेकिन उस एक्स्ट्रा काम करने पे उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। और ये प्रॉमिस किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर वो 1 घंटा काम करते हैं विदाउट एडिशन वेजेस के बेस पे तो जब कंपनी लॉसेस से बाहर निकल जाएगी और जब वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ने लगेगी, मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो नॉर्मली वेजेस बढ़ा देगा और लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में ये डिसीजन फुलफिल होगा और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर लेबर ऐसा कहता है कि नहीं हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट के साथ आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेबर काम कर रहा है और मैनेजमेंट ऐसा कहता है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसी कमिटेड प्रीजुडिशरी थिंग्स को अगर आपको इक्वली रखना है तो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 इज यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे कमांड की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर फ्रॉम हु ही शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड टू whom he should be responsible। If an employee receives order from more than one person at a time, it creates confusion and conflict। Thus, the principle of unity command avoid confusions and leave no options for conflict on the part of employment। अगर जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जो भी वर्कर है उसके ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिससे वो ऑर्डर्स लेता होगा और उसी को वो रिस्पॉन्स भी करता रहेगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर वर्ड यूज किया गया है, द यूनिटी ऑफ कमांड हैज टू बी टेकन बाय वन पर्सन ओनली, देन मोर देन वन पर्सन कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड confusions। Sir, so it's an image over here. One person is on the red color and another is in blue colors. The one person is ordering to their fellow employees so that one person provides all the information related to work he or she
gives the job to that particular group, and that group is working on that particular job. If something occurs or something gets confused, the persons will go to that particular leader and discuss on it. For example, over here, Mr. Abdul, sales executive, gets instructed from Mr. Parminder, sales manager, to sell more to reach target sales. At the same time, Mr. Abdul receives order from Mr. John, production manager, to go slow in sale due to the shortage of raw material. In this case, conflict occurs, and Mr. Abdul might as the whole instructions he should follow. अब यहाँ पे ऐसा है कि दो लोग हैं, एक तो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऐसा बोला गया है कि आपको प्रोडक्ट को और बेचना है, लेकिन जब प्रोडक्शन मैनेजर है उसने कहा कि नहीं, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको थोड़ा उसको स्लो डाउन करना है क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, शॉर्टेज है। तो इसमें मिस्टर अब्दुल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, या कंफ्यूजन में आ गया कि अब वो किसकी सुने, या तो सेल्स मैनेजर की सुने या तो प्रोडक्शन मैनेजर की सुने। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि एक ही पर्सन आपको गाइड करे तो बेटर है। नेक्स्ट पार्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एवरी लीडर हैज टू शो द डायरेक्शन टू देयर एम्प्लॉयज। According to this principle, activities have the common goal must have one head and one plan. This helps in bringing unity of action and coordination in an organization. For example, if the company is manufacturing two different products, it should have two separate divisions or departments for both the product. Each division or department should have their separate in charge plan and resources. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही एक दिमाग और एक ही प्लान चलना चाहिए। लेकिन अगर एक कंपनी के अंदर एक ही रिलेटेड प्रोडक्ट है तो कोई इशू नहीं, लेकिन जब दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको दो डिफरेंट सेपरेट डिविजन्स या डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए, और उसके अंदर एक सेपरेट इंचार्ज बनाना चाहिए जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड ही डिस्कशन कर सके और डिसीजन ले सके। यहाँ पे एडवांटेज भी है डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी काम रिपीट नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। दूसरा मैंने लिखा है, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फोकस एफर्ट्स। आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड ही काम कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप ज़्यादा एफर्ट डालोगे। इट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से क्या होता है, सबके साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होती है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद में आता है सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू गेट इंटरेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है। तो इसमें ऐसा है ना कि नॉर्मली हम लोगों को एज एन मैनेजर हमको एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना है। अगर एम्प्लॉय अपना बेनिफिट करता है तो साथ साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट करेगा और दोनों का ही गोल अचीव भी होगा। अकॉर्डिंग टू द फ्योल, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप भी मानते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेकिन अगर आप एम्प्लॉय का गोल भी अगर आप दिमाग में रखते हो और उसको टास्क देते हो तो वो खुद भी डेवलप होगा और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी होगी। An organization has its own objective while an individual worker has its own individual interest for working in a company. The interest of the group must be supersede that of an individual. For the attention of a common goal of an organization, employees are required to give the carelessness, selfishness, lethargy, and their personal interest. They also should focus on their efforts on the achieving of common goal. जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय को अपनी केयरलेसनेस छोड़नी पड़ेगी, सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी। साथ साथ में वो जितने भी इलीगल या ऐसा बोल सकते हैं कि जो अनवांटेड वर्क्स है वो सब कुछ छोड़ देगा। अगर वो सब चीज़ छोड़ता है तो वो कॉमन गोल की तरफ बढ़ेगा। Everyone has to work accordingly. Positive effects are, it creates coordination between individual and organizational goal. Then it helps in achieving of organizational goal. No ego clashes as it gives credit for success of a group efforts. अगर आप ग्रुप एफर्ट्स में काम करते हो तो सबको ही बेनिफिट्स होता है। यहाँ पे किसी को क्रेडिट, इंडिविजुअल क्रेडिट नहीं मिलती और ईगो किसी का हर्ट नहीं होता। लास्ट पॉइंट आज हम देखने वाले हैं वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सैलरीज कैसे होती हैं,
जैसे आप जैसा आप काम करवाते हो उसी तरह से आप उनको पे भी करो। तब अगर आप एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड वेजेस पे करते हो और उससे ज़्यादा उनको पे करते हो रीज़न के साथ में, तो वो भी स्टैंडर्डाइज बनेगा और साथ साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करेगा। Let's see, according to this principle, the remuneration payable to the employee should be fair to both employee and the employer. जिसने हायर किया उसके लिए भी सूटेबल होना चाहिए और जो वहाँ पे हायर्ड हुआ है उसके लिए भी सही सूटेबल होना चाहिए. The employee should get fair wages, which ensures at least a reasonable standard of life. नॉर्मली इतनी सैलरी होनी चाहिए कि सामने वाला अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके. यहाँ पे एक इमेज है जिसके अंदर ऐसा आता है वर्क फोर्स प्लस मार्केट ट्रेंड इज इक्वल टू सैलरी. तो फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के कुछ एडवांटेजेस है. इट एंश्योर्स हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द मैनेजमेंट. अगर सैलरी अच्छी आप देते हो तो यहाँ पे एक गुड रिलेशन क्रिएट होता है एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में. इट एंश्योर्स स्मूथ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप सैलरी अच्छी देते हो तो आपका वर्क भी चलते रहता है, यहाँ पे वर्क नहीं रुकेगा. इट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट दैट मैक्सिमम. आप अच्छी सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए. सो हमने आज 7 पॉइंट्स देखे हैं. इन नेक्स्ट वीडियो विल सी ऑल 7 पॉइंट्स, नेक्स्ट 7 पॉइंट्स. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.